Hello students, welcome to the BSc 5th semester. I hope you all be happy and healthy at your homes. I am Paramjit Kaur, Assistant Professor in the Department of Computer Science at Government National College, Sirsa. I will teach you the subject Introduction to Database System. Before starting this subject, I want to tell you about the syllabus which we will cover in this particular subject. The syllabus is divided into 4 units. In Unit 1, we will study the basic concepts of database system like what is data, information, what are the disadvantages of the previous file-based approach and what are the characteristics of database approach, what are the essential components of database system environment and also the components of database management system and various roles in the database environment. In the second unit, we will study the three-level architecture of database system, which is also called as NC Spark architecture with its related concepts. We will study the classification of database management systems and different categorization of data models. In the third unit, we will study entity relationship model in detail and basic concepts of hierarchical and network data models. In the last unit, that is in the fourth unit, we will learn about the relational data model in detail. To cover this syllabus, we can refer various textbooks and reference books, and I have listed some of them. You can refer the Fundamentals of Database Systems by Almasri and Nawate. We can also refer the Database System Concepts book authored by Korth and Sudarshan. Some of the topics might be covered by Database Systems by Thomas Connolly, Caroline Beck, and we can also refer the book An Introduction to Database Systems by C.J. Tate. Along with these books, you can also refer any kind of database system based book as per your understanding level. Now we will start the subject, that is Introduction to Database Systems. Before starting, we need to learn about why do we study the database systems. हम database systems क्यों पढ़ते हैं, नीड क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है. इसकी ज़रूरत समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डाटा क्या है और डाटाबेस क्या है. एज वी ऑल नो, डाटा क्या है? डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स. रॉ फैक्ट से हम क्या समझते हैं? कोई भी नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस जो हम कलेक्ट कर सकते हैं, जो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं. और डाटाबेस क्या है? डाटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा. अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं डाटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा. जो डाटा की हम कलेक्शन करेंगे डाटाबेस में, वो डाटा इंटर रिलेटेड होना चाहिए. कोई भी रैंडम कलेक्शन है जो वो डाटाबेस नहीं हो सकती. ठीक है, तो डाटाबेस क्या है? कलेक्शन है इंटर रिलेटेड डाटा की, और वो डाटा हम किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिट्स. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम उसे स्टोर करके रखते हैं. तो डाटाबेस किस लिए बनाया जाता है? डाटाबेस डिज़ाइन किया जाएगा फॉर द स्टोरेज एंड मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डाटा.
तो डेटाबेस एंड डेटाबेस सिस्टम्स की हमें क्या है, हमारी डेली लाइफ में कोई भी कॉर्नर हम ले लें वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है। लाइक हम बैंक से डील करते हैं, या हम किसी भी तरह के रिजर्वेशन सिस्टम की बात करते हैं, या हम बिल पेमेंट्स की बात करते हैं। तो ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ आवर डेली लाइफ इज़ एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ डेटाबेसेस। हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, डेटाबेसेस के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। हम बैंक में जाते हैं, हमने कुछ डिपॉजिट करवानी है मनी, या हमने फंड्स विड्रॉ करने हैं, तो अल्टीमेटली जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, कस्टमर से रिलेटेड जो डाटा है, वो कहीं ना कहीं बैंक के डाटाबेस में स्टोर होगा। कस्टमर के अकाउंट्स की डिटेल है जो, वो क्या है, दैट इज़ नथिंग बट अकाउंट डाटा रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर। तो वो कहाँ पर स्टोर है, अल्टीमेटली बैंक के किसी डाटाबेस में स्टोर होगा। हमने कहा कि हमें 1000 रुपीज़ क्या है, विड्रॉ करना है, तो हमारा अवेलेबल बैलेंस क्या है, क्या हम 1000 रुपीज़ विड्रॉ करने के हमारी पॉसिबिलिटी है, वहाँ हमारा जो अकाउंट बैलेंस है वो 1000 रुपये से ज़्यादा होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, विड्रॉल है जो वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ क्या है, नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा का सारा जो डाटा है वो कहीं ना कहीं कहाँ पर स्टोर है, डाटाबेस में स्टोर है, बैंक के डाटाबेस में। ठीक है, इसी तरह से हम एयरलाइन की टिकट्स रिजर्वेशन करते हैं, या होटल्स में कोई रूम बुक करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, हमारी डिटेल, हमारा जो डाटा है वहाँ पर मेंटेन किया जाएगा इन द होटल डाटाबेस। या हम कुछ टिकट्स रिजर्वेशन कर रहे हैं, चाहे वो रेलवेज़ की है, चाहे वो एयरलाइन की है, तो कितने सीट्स अवेलेबल हैं, क्या हमारा सोर्स है, क्या हमारा डेस्टिनेशन रहेगा, क्या रूट्स होंगे, क्या शेड्यूल होगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर है, उनके डेटाबेस में स्टोर है। ठीक है, या हम किसी भी तरह की परचेजिंग करते हैं सुपरमार्केट से, तो क्या आइटम हम परचेज़ करना चाह रहे हैं वो उनके स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं है, उनकी इन्वेंट्री में अवेलेबल है या नहीं, कितने नंबर ऑफ़ आइटम्स हम परचेज़ करना चाहते हैं, कितनी आइटम्स अवेलेबल हैं, हमारी परचेजिंग के बाद कितनी अमाउंट, कितनी जो अमाउंट हम पे करेंगे, कितने अमाउंट की वो पर्टिकुलर आइटम्स हैं, परचेजिंग के बाद कितना स्टॉक वहाँ पर अवेलेबल रह जाएगा, ये सारी की सारी अपडेशंस, ये सारा का सारा जो डाटा है वो कहाँ पर स्टोर्ड, दैट इज स्टोर्ड इन द डेटाबेसेस, नथिंग एल्स, राइट। तो हमारी डे टू डे लाइफ की जो ईच एंड एवरी एक्टिविटी कहीं ना कहीं डेटाबेसेस से क्या है, एसोसिएटेड है। तो इसलिए हमें क्या ज़रूरत है, डेटाबेस को मेंटेन करने की ज़रूरत है, डेटाबेस को मैनेज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो डेटाबेस सिस्टम्स बेसिकली क्या है, उन लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को, लार्ज बॉडीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो अब डेटाबेस सिस्टम्स हमने बोला था। ठीक है, तो वो सिस्टम जो हमारे डेटाबेस में डाटा को स्टोर करवाने के, डेटाबेस की मैनेजमेंट करने में पूरा एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करेगा, दैट इज़ नथिंग बट अ डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, तो जो डेटाबेस सिस्टम्स हमारे लार्ज रिपॉजिटरी ऑफ डाटा को मैनेज करेगा, उस मैनेजमेंट में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, उस मैनेजमेंट में क्या है कि जो हमारा डाटा हमने स्टोर करना है उसके लिए कंटेनर क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, लाइक मैंने कहा कि मैं एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, मैंने CDLU में एडमिशन लेना है, एनरोल करना है किसी कोर्स में, तो मैं क्या हूँ, जनरली क्या हूँ, एक पर्सन। जब मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी में एनरोल होना है किसी कोर्स में, तो मैं उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बन जाऊँगी। तो वहाँ पर मेरी डिटेल्स है, जो पर्सनल डिटेल्स के अलावा मेरी किस कोर्स में मैं एनरोल होना चाहती हूँ, वो सारी की सारी डिटेल्स भी वहाँ पे मेंटेन्ड होंगी। कहाँ पर मेंटेन्ड होंगी, यूनिवर्सिटी के डाटाबेस में मेंटेन्ड होंगी। तो वो डाटा वहाँ पर किस फॉर्म में मेंटेन किया जाएगा, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करना। ठीक है, और जब वो स्ट्रक्चर डिफ़ाइन हो गया, उसमें डाटा हमने डाल दिया, उसके बाद डाटा में किसी तरह की भी मैनिपुलेशन होनी है, उन सबको मैनेज करना क्या है, हमारी ओवरऑल मैनेजमेंट में आता है। और ये मैनेजमेंट कौन करता है, डेटाबेस सिस्टम्स मैनेज करवाते हैं।
ठीक है। तो डेटाबेस सिस्टम्स कैसे मैनेज करवाएगा? विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो टर्म्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज डेटाबेस, सेकेंड वन इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर हमारे पास क्या बनाएंगे? डेटाबेस सिस्टम्स बनाएंगे। ठीक है, तो अलॉन्ग विथ क्रिएटिंग और डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेटा, हम क्या कर रहे हैं? हम उसकी सेफ्टी के लिए भी इंश्योर कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स जो हमारा डाटा हमने स्टोर किया डेटाबेस में, अगर वो सेफ नहीं है तो क्या है, कोई भी किसी भी तरह का हार्म हो सकता है हमारे डाटा को, हमारे डाटा की चोरी हो सकती है। ठीक है, उसका मिसयूज़ हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों से इसकी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए हमारा जो डेटाबेस सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे डेटाबेस की सेफ्टी के लिए भी। ठीक है, तो वो सेफ्टी क्या है? हमारी फिज़िकल सिक्योरिटी भी हो सकती है, फिज़िकल सेफ्टी भी हो सकती है। ठीक है, लाइक हमारे जो बड़े बड़े सर्वर्स हैं जहाँ पर हमने डेटाबेस मेंटेन किया है, उसकी फ़िज़िकल सिक्योरिटी। ठीक है, वो चोरी ना करके ले जाए कोई उसे। या फिर सिस्टम सिक्योरिटी, कि सिस्टम क्रैश हो गया तो हम कैसे अपने डाटा को वापस रिकवर करेंगे, उससे रिलेटेड सिक्योरिटी इश्यूज़ को भी ध्यान में रखना। या फिर तीसरी तरह की सिक्योरिटी क्या है? अनऑथराइज्ड एक्सेस से सिक्योरिटी। ठीक है, तो इन सभी तरह की सिक्योरिटीज़ को इंश्योर करना भी क्या है? हमारे डेटाबेस सिस्टम का काम। ठीक है, तो हमारी किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर क्या है? ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज डीलिंग विद डेटाबेस इन समहाउ। ठीक है, किसी न किसी तरह की एक्टिविटी को करने के लिए हमारी किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन आज की टाइम में डेटाबेसेस के साथ कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। ठीक है, तो क्योंकि डाटा एक्सप्लोजन बहुत हाई रेट पे हो रहा है, तो डेटाबेस को मैनेज करना, उस डाटा को स्टोर करके रखना प्रॉपर, और उसकी प्रॉपर असेसिंग प्रोवाइड करना, प्रॉपर मैनेजमेंट प्रोवाइड करना किसका काम है? उसके लिए हमें क्या है? डेटाबेस सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इन पॉइंट से आपको पता चल गया कि वाई डू वी स्टडी द डेटाबेस सिस्टम्स, व्हाट इज़ द नीड ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स। तो नेक्स्ट हम कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पर हम इन डेटाबेस सिस्टम्स को यूज़ कर रहे हैं। ये जो डेटाबेस सिस्टम एप्लीकेशंस हैं, ये हम कुछ ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली क्या कर रहे थे? टेक्सचुअल और न्यूमेरिक डाटा को फॉर्म में हम डाटा को स्टोर करते थे। आजकल क्या है? डाटा किसी भी तरह का हो सकता है। इट कैन बी numbers only, it can be text, it can be alphanumeric, it can be ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, किसी भी तरह का डाटा है जो हम अपने डाटाबेसेस में मेंटेन कर सकते हैं। और अकॉर्डिंगली हमारा क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? हमारे उस डाटा को प्रॉपर मैनेज करने के लिए हमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डेटाबेस सिस्टम एप्लीकेशंस की। तो फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं हम, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, किसी भी तरह की एंटरप्राइज है, वो क्या करेगी? अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में डाटा को स्टोर करेगी। तो वो डाटा किस किस तरह का हो सकता है? लाइक कोई सेल्स परचेज से रिलेटेड कोई एंटरप्राइज है, तो वो क्या करेगी? वो किस तरह के प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है, क्या उसका प्रोडक्ट नंबर होगा, क्या प्रोडक्ट नेम होगा, क्या उसके मेजरमेंट्स होंगे, प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या होगी, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। ठीक है, ये सारी की सारी डिटेल्स हैं जो वो उससे रिलेटेड डाटा है जो वो मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, लाइक कोई कस्टमर उनके प्रोडक्ट्स को परचेज़ करता है, तो वो कौन सा कस्टमर किस प्रोडक्ट की परचेजिंग कर रहा है, कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर का एड्रेस क्या है, कस्टमर ने कितनी क्वांटिटी जो प्रोडक्ट की वो परचेज़ करने की के लिए ऑर्डर दिया है, क्या उसका प्रॉपर उसका टोटल अमाउंट होगा, क्या उसका ऑर्डर नंबर होगा, किस डेट को उसने ऑर्डर किया, सारी की सारी डिटेल्स। ये क्या है? दैट इज़ नथिंग बट डाटा अबाउट कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स। ठीक है,
और इसी तरह से उसकी परचेजिंग डिटेल्स। तो सेल्स परचेज से रिलेटेड जो एंटरप्राइज है वो अपने डाटा को मेंटेन कैसे करेगी, इन द फॉर्म ऑफ डाटाबेसेस। ठीक है, इसी तरह से अकाउंटिंग से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो जहाँ पर अकाउंटिंग डिटेल्स है जो मेंटेन की जाएंगी, लाइक पेमेंट से रिलेटेड, रिसिप्ट से रिलेटेड, कि क्या अकाउंट बैलेंसेस हैं, क्या उनके एसेट्स हैं, ठीक है, या अदर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी मेंटेन की जाएगी डेटाबेस सिस्टम्स की टर्म्स में। ठीक है, सिमिलरली ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, तो वहाँ पर कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, उन एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसने मेंटेन करनी है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है, पेरोल टैक्सेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्या उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कब उनके पे चेक्स की जनरेशन होनी है, ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो कौन मेंटेन करके रखता है, एचआरडी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये भी कहाँ है, इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेसेस। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसने अपने सप्लाई चेन के बारे में कंप्लीट डिटेल मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, उसका जो फैक्ट्री है उसकी आइटम का जो प्रोडक्शन ट्रैक है वो मेंटेन करके रखना है, क्या इन्वेंट्रीज उसकी वेयर हाउसेज में पड़ी हैं। ठीक है, किन आइटम्स का ऑर्डर आना है, किन आइटम्स का ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, सारी के सारे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो भी मेंटेन की जाएगी डेटाबेसेस के टर्म्स में। ठीक है, इसी तरह से ऑनलाइन रिटेलर्स हैं। तो अगर आप ये सोचो कि अगर डाटा है यहाँ पर और डेटाबेस नहीं बनाया गया, प्रॉपर उसकी डाटा की स्टोरेज नहीं की गई, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं की गई, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतने सारे डाटा को याद तो रख नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं उसे डेटाबेस सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आजकल क्या है, पहले हमारे पास हार्ड डिस्क के स्पेस है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है जो वो बहुत कम में भी काम चल जाता था। ठीक है, आज हमारे पास टेराबाइट पेटाबाइट्स ऑफ स्पेस अवेलेबल हो तब भी हमारा काम नहीं चलता। आजकल क्या हम बात कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम क्लाउड से स्टोरेज स्पेस है जो वो बोरो करते हैं। तो ये क्या है, इस डाटा एक्सप्लोजन की वजह से हुआ है ना। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये क्लाउड्स में भी क्या है, हमारे एंटायरली डाटाबेस ही मेंटेन हो रहे हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारी, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, आप बैंक से डील करते हैं। आपने अगर किसी कोर्स में एनरोल किया फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपने क्या किया, या तो बैंक में जाकर अपनी फ़ीस डिपॉजिट की, या आपने जो नेट बैंकिंग के थ्रू या किसी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू है जो अपनी फ़ीस है जो डिपॉजिट की उस कोर्स में एनरोल होने के लिए। तो ये जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो ये बेसिकली अल्टीमेटली कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, बैंकिंग के डेटाबेस में मेंटेन हो रही है ना। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो या ऑफलाइन मोड में भी जाकर बैंक में अपना जो फ़ीस डिपॉजिट कर रहे हो, तो एज अ कस्टमर आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कुछ मेंटेन्ड होगी। ठीक है, आपके अकाउंट से रिलेटेड डाटा है जो वह मेंटेन्ड होगा। आपने क्या ट्रांजैक्शन की उससे रिलेटेड, आपने डेबिट किया, क्रेडिट किया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, किस तरह की ट्रांजैक्शन की है आपने, वो सारी की सारी डिटेल है जो उसके डाटाबेस में रिफ्लेक्ट होती है। तो डाटाबेस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, बैंकिंग सेक्टर है जो वहाँ पर डाटाबेसेस यूज़ हो रहे हैं। आपके क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की डिटेल ये भी वहाँ पर मेंटेन हो रही है, क्या परचेजेस आपने किए, परचेजिंग कितनी की क्रेडिट कार्ड से, किस पर्टिकुलर स्पोर्ट पे की, पीओएस पे की। ठीक है, आपकी मंथली स्टेटमेंट्स जनरेशन, ये सारी की सारी जो डीलिंग है वो कहाँ से हो रही है, कहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कहाँ पे डाटा स्टोर हो रहा है, कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, डेटाबेस सिस्टम्स पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली फाइनेंसियल से रिलेटेड। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में। यूनिवर्सिटीज़ में अब यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं, स्टूडेंट्स वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के जो मेन की प्लेयर्स हैं वो कौन कौन है, स्टूडेंट्स हैं। किन कोर्सेज़ में वो एनरोल हो रहे हैं, वो कोर्सेज़ हैं।
कौन से इंस्ट्रक्टर उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो इंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है। क्या उनकी ग्रेडिंग होती है पर सेमेस्टर, वो ग्रेड्स की इंफॉर्मेशन है। ये सारी की सारी एंटिटीज़ क्या हैं, यूनिवर्सिटी का पार्ट है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, उन स्टूडेंट्स जो एनरोल हो रहे हैं उनकी बेसिक डिटेल्स है जो मेंटेन करके रखेगी। स्टूडेंट का नाम है, उसका पता है, उसका मदर फादर नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसने कब उस 10th पास की, कब 12th पास की, ठीक है। उसके बेसिस पे उसने कौन से स्ट्रीम में पास किया, कौन से कोर्स में वो यहाँ पर एनरोल हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग है जो वो मेंटेन होगी वहाँ पर। अब किस कोर्स में वो एनरोल हुआ स्टूडेंट, उसका कोर्स रजिस्ट्रेशन नंबर है जो वो मेंटेन करके रखता है, कोर्स का नेम, ठीक है। क्या उसका स्ट्रीम रहेगी, क्या उसके ग्रेड्स रहेंगे, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो मेंटेन करके रखेगा। कौन से इंस्ट्रक्टर्स हैं जो स्टूडेंट को टीच करेंगे, उन इंस्ट्रक्टर्स की बेसिक डिटेल्स, कौन सा इंस्ट्रक्टर कौन सी कोर्स को टीच करेगा, ठीक है। ये सारी की सारी डिटेल्स कहाँ पर मेंटेन हो रही हैं, यूनिवर्सिटी के डाटाबेस में मेंटेन हो रही है। तो यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, डाटाबेस सिस्टम्स की एप्लीकेशन। सिमिलरली हमने अभी बात की थी रिजर्वेशन सिस्टम्स की, लाइक एयरलाइन रिजर्वेशंस हैं, रिजर्वेशन से रिलेटेड डाटा होगा वो सारा मेंटेन होगा वहाँ एयरलाइन रिजर्व, जो एयरलाइंस हैं उनके डाटाबेसेस में। जो फ़्लाइट्स टेक ऑफ होंगी या लैंड करेंगी उनकी शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर मेंटेन्ड है, एयरलाइंस के डाटाबेस में। सिमिलरली मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया जो सेक्टर हम बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन की, तो वहाँ पर भी क्या है, हम डे टू डे कितना स्मार्टफोन को या किसी भी फ़ोन को हम यूज़ कर रहे हैं, हम कॉलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम इंटरनेट एक्सेस के लिए यूज़ कर रहे हैं या किसी और सर्विस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे वो कहीं ना कहीं मेंटेन्ड हैं। किस बेसिस पे हमें मंथली बिल्स मिल जाते हैं, मंथली बिल्स मिलते हैं ना हमें। तो जो पोस्ट पेड सिम्स हैं हमारे, तो वो कॉल रिकॉर्ड वहाँ पर मेंटेन्ड होगा, उसके बेसिस पे वो मंथली बिल है जनरेट करके भेजेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी डिटेल कहाँ पर हो रही है, अल्टीमेटली डाटाबेसेस में मेंटेन हो रही है। इसी तरह से रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम्स। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो डाटाबेस और डाटाबेस सिस्टम्स हैं जो, वो हमारी डे टू डे लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, और इसको स्टडी करना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब बातों से आपको पता चल गया कि वाई डू वी नीड database systems and what are the various sectors where we can use the database systems। तो इन समरी हम बात कर सकते हैं डेटाबेस सिस्टम कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, इन होटल रिजर्वेशंस, इन एयरलाइन रिजर्वेशंस, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम्स, in telecommunication sector, in banking, in HRD, in sales department, in manufacturing organizations, online retailing, supermarket purchasing. Each and every field of life is associated with database systems. In the next lecture, we will start with our unit first, that is basic concepts of data, information, records, files, and other concepts. I hope you enjoy. Thank you very much.